क्योंकि अभी का जो टॉपिक है स्किन, ये टोटली बिलोंग करता है तुम्हारा बॉडी फ्लूइड्स और उसके डायनामिक्स पे, ठीक है। क्योंकि बॉडी रेगुलेशन, बॉडी फ्लूइड्स जो है उसमें भी जी तुम्हारी ये आ जाती है। तो जी तो अपना वो म्यूट कर लो, अब हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जी चीज जी है, स्किन में देख सकते हो कि स्किन की जो फोटोग्राफ है ना, तो ठीक है दिस पिक्चर relates with the different layers of the skin. So you can see very well that अच्छा the uppermost is the this सर is the, आवाज ब्रेक हो रही है, वीडियो हम अपना बंद कर दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना म्यूट कर लो ना, म्यूट कर लो आप, हाँ ठीक। So the very outermost layer of the skin is the epidermis, the middle one is the dermis, and the inner one is the hypodermis. So you can see very well that the hair follicle, in a objective you have made the question that from where the hair follicle will originate. So after seeing this picture you can have an idea that the root of the hair follicle is in hypodermis level, huh? Hypodermis. So this is the hypodermis from where the hair follicle starts. As well as you can see these sweat glands, these fat, connective tissue, these are all the part of hypodermis. Mean to say they are originate somehow from the hypodermis. This dermis part is, I will let you understand these things with some running material. Huh? So the very first thing is the skin, which is the largest organ of the body. Yeah. So they almost cover almost 20 square feet of the total area of the body. So basically this skin protects us from the various outer most elements like microbes or as it is like these things. Also this skin, it helps in the regulation of body temperature. And at the same time it permits the sensation of touch or to any environmental factor like heat or cold. So basically you can have the idea that the skin has three layers: epidermis, dermis, and the innermost is the hypodermis. हाइपोडर्मिस So basically this epidermis जो है, it provides a waterproof barrier and creates our skin tone. And the basic thing regarding the sensation, whatever we felt or an animal felt regarding touch, heat, or exposure to any cold, this phenomenon is going to be happen on the epidermis level. So regarding dermis, it is just beneath the epidermis, and it is almost in a tough connective tissue or hair follicles and like sweat glands. And the deeper one is the, it is comprisely mostly of fat and connective tissue. So here you have an idea that this skin color is created by the special cells called melanocytes. So these are produced by the ओके melanin pigment. And these pigments are located in the epidermis. You can say the outermost layer of the skin. These melanocytes or the pigment melanin is present. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर देखते हो जब भी सनबर्न होती है या फिर फ्रॉस्ट बाइट होती है, मतलब आफ्टर जी द एक्सपोजर ऑफ एनी कोल्ड, देखते हो स्किन की जो ऊपर की सतह होती है वो बिल्कुल झुलस जाती है ना, बिल्कुल वो या इधर वो सनबर्न हो या फ्रॉस्ट बाइट हो।
उसका रीजन यही होता है ओके कि जो हमारे पिगमेंट्स है ये बिल्कुल ऊपर ऊपर आउटर मोस्ट सिचुएटेड होती है, तो ये डायरेक्ट उन पे इफेक्ट करती है, तो इसके कारण से ये चीजें होती है। दूसरा जो स्किन ओके का कलर होता है, कुछ लोग बिल्कुल वाइट होते हैं, मिल्की वाइट होते हैं ना, मतलब डिपेंड्स अपॉन द देयर ओके लिविंग सराउंडिंग और कुछ लोग गेहुए होते हैं या फिर ये कुछ काले होते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द दिस पिगमेंट मेलानिन, ठीक है। तो ओके अगर अब इसकी बात करें स्किन कंडीशंस की, तो कंडीशन में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे मतलब these things are related with the unconditional factors which comes after the any exposure of unconditional environmental factor, रैशेस कहते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक स्किन में कुछ चेंज आने से है, मतलब किसी तरह की स्किन इरिटेशन होगी या फिर किसी ड्रग से हो सकती है, किसी भी टॉक्सिन मटेरियल से हो सकती है ना, या फिर किसी पैरासिटिक इन्फेक्शन से हो सकती है। डर्माटाइटिस ऐसा टर्म सुने होंगे। डर्माटाइटिस ओके इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, सिंपल। ओके एक्जिमा है, चलो इसको ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे, एक्जिमा भी वही है, एक टाइप का डर्माटाइटिस भी है, ठीक है। ओके सोरेसिस बोलते हैं, सोरेसिस भी वही होता है, उसमें एक प्लाक टाइप का स्किन के ऊपर एक प्लाक टाइप का फैल जाता है, और ये भी ऑलमोस्ट स्किन रैशेस है, लेकिन स्किन रैशेस का थोड़ा बड़ा पार्ट है। डैंड्रफ जो ऑलमोस्ट जहाँ ओके पे हेयरी स्किन होते हैं ना, जहाँ स्किन होते हैं हेयर्स के साथ, वहां पर ये डैंड्रफ प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो डर्माटाइटिस या सोरेसिस और एक्जिमा भी क्रिएट कर सकता है। तो ये जनरली तुम्हारे सीडरस ओके ग्लैंड जो है उसके कारण है। एक्ने तुम्हारा, ये तुम्हारे जनरली फेस पे आती है, ठीक है। सेल्यूलाइटिस है, ओके वैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, एग्जैक्टली इसको सेल्यूलाइटिस कहते हैं। ये सब पॉइंट्स दोस्त ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव्स के लिए, है ना। ओके स्किन एब्सेस है, रोजेका है। स्किन एब्सेस क्या है, वही बॉयल और फर्निकल, मतलब किसी तरह का कोई पुंड कह सकते हो, ठीक है, इन्फेक्शस। रोजेका भी वही है, रैशेस होती है फेस पे, वाट्स जानते हो, दैट इज ओके मतलब डेवलपमेंट ऑफ एन, कह सकते डेवलपमेंट ऑफ सम मसल्स, हाँ, और एक्यूमुलेशन ऑफ सम मसल्स। लेकिन ये क्या होता है, ये नॉर्मल मसल्स नहीं होते हैं, ये अफेक्टेड बाय एनी वायरस और सम केमिकल्स, ठीक है। देख सकते हो। फिर दूसरा नेक्स्ट है मेलानोमा। ये एक तरह डेंजरस स्किन कैंसर, ये रिजल्ट फ्रॉम द सन डैमेज एंड अदर कॉजेस। वैसे ही बेसल सेल कार्सिनोमा है, सिबोरिक कीरेटोसिस है, और बहुत सारे हैं, जो भी ये सारे बिलोंग करते हैं स्किन के लिए, ठीक है। ओके अब बेसिकली जो है स्किन का जो ये आता है, इसके टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। स्किन में टेस्ट के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए इसे बायोप्सी करते हैं या फिर ओके स्किन की ही जो टेस्ट होती है जनरली, तो स्किन की बायोप्सी करते हैं। इफ एनी टाइप ऑफ मान लो एक्जिमा हो गई या डैंड्रफ हो गई, तो उसके लिए स्किन की हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। और जो कंडीशन होती है उसमें क्या है नहीं है वो देख के उसको टेस्ट करते हैं। फिर एक्सट्रैक्ट निकालते हैं किसी एलर्जी के लिए, अगर है तो स्किन में देखते हैं। फिर ट्यूबरक्लोसिस का जैसे जानते हो उसको सबसे पहले जो इनोकुलेट करते हैं स्किन पे ही हम, उसकी प्रेजेंस देखने के लिए, है ना, कि ये मतलब उसको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के लिए। ट्रीटमेंट्स है, लेकिन ट्रीटमेंट पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो स्किन है एग्जैक्टली जी सर एनिमल के लिए क्या मायने रखता है, ठीक है। स्किन एनिमल्स के लिए मायने क्या रखता है, सबसे जरूरी तो है कि आउटर कवरिंग है बॉडी का, जो कि हमारे बॉडी पार्ट्स को और जो भी विजुअल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम जी सराउंडिंग्स, कह सकते हो एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स, किसी वर्स्ट वेदर से
फिर जो नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन है उससे, हैवी रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, इन सब से। दूसरा क्या है, ये एक टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है। कहने का मतलब है, जैसे बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो उसमें भी देखते हो जी स्वेट ग्लैंड जो है वो मतलब बहुत ही आइडियली काम करता है। कहने का मतलब क्या है, ये जी जो स्वेट ग्लैंड्स है ये स्वेट रिलीज करता है। तो ये स्वेट रिलीज कहाँ से होती है? तो कहने का मतलब है कि जब इन्वायरमेंटली बहुत ज्यादा अगर गर्मी हो जाती है तो शरीर को उससे जी डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, स्पेशली अपने विसरल ऑर्गन्स लाइक हार्ट को। तो उसको बचाने के लिए, लंग्स को बचाने के लिए बॉडी क्या करता है, एक अडेप्टेशन लेता है। ठीक है, तो जितने जी भी जी वेन्स या आर्टरीज हैं, मतलब ब्लड सप्लाई जो है, वो ये सारा क्या करता है, जी क्योंकि बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जो भी हीट जी लिबरेट हो रही है बॉडी से या फिर डेवलप हो रही है, इसको ये पेरिफेरल में छोड़ देता है और सेंट्रली ये बिल्कुल कूल हो जाता है। तो ये जब गर्मी कूल हो जाता बाहर जाती है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट से है। जी टकराती है और फिर इवापोरेशन होती है वहां। तो इवापोरेशन होती है तो स्वेट ग्लैंड के थ्रू स्वेट के साथ जितनी भी हीट है वो लिबरेट हो जाती है। लाइकवाइज ठंड के कंडीशन में देखे होगे कोल्ड एक्सपोजर में क्या होती है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी ठंड है, ठीक है, और एनिमल का बॉडी जो है वो जी गर्म है, लेकिन कितने देर तक गर्म हो सकता है? कोप अप करना पड़ेगा उसको अपने लेवलीहुड के लिए या जी कंडीशन के लिए। तो उस समय एग्जैक्टली वो क्या करता है, जो भी ब्लड सप्लाई उसके पेरिफेरल्स में है, उसको वो वहां से सेंट्रली एडजस्ट कर लेता है, मतलब अपने विसरल ऑर्गन्स में या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स में। इससे क्या होता है, उनकी मेटाबॉलिज्म, जो एनिमल की मेटाबॉलिज्म है वो कंटिन्यू बढ़िया है, मतलब कंट्रोल वे में अच्छी होती है। और बाहर क्या है, चूंकि ब्लड सप्लाई कम है, तो उसके थ्रू क्या होता है, हीट जो है उसको, मतलब एक जो मीडिया मिलना चाहिए ना इन करने के लिए शरीर में, वो नहीं मिलती है प्रॉपर, जी तो उससे वो कप अप करता है। दूसरा फिर देखोगे, अगर होस्ट कंडीशन होता है तो एक टर्म आती है शिवरिंग, सुना होगा आपने। जी ये शिवरिंग क्या है, ये शिवरिंग जो है ये अच्छा है कि बुरा है, तुम्हारे समझ से क्या है, जो तुम्हारा नॉलेज है? अ, मेरे समझ से सर अच्छा होता है, क्योंकि शिवरिंग की वजह से जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मतलब मेंटेन होता है। जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग वो मतलब शिवरिंग एग्जैक्टली, देखो बॉडी के टेम्परेचर को शिवरिंग, मेंटेन करता है। हाँ शिवरिंग चीज क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? तो शिवरिंग कह सकते हो ये एक नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके थ्रू जी एनिमल अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। जी और मतलब किसी तरह का बाहर का स्ट्रेस विसरल ऑर्गन्स में, जी स्पेशली लंग्स और हार्ट को नहीं आने देता है। नॉट इवन हार्ट और लंग्स, ये कह सकते हो जीआई ट्रैक्ट को भी वो रेगुलेट करता है। कहने मतलब है कि इजिली जी डाइजेशन हो, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म सही हो, तो किसी तरह का उसमें शॉक का कंडीशन नहीं लाने देता है, नहीं आने देता है। जी तो ये एग्जैक्टली exactly शिवरिंग में करता क्या है, जो अपने मेटाबोलाइट्स, मेटाबॉलिज्म जो हो रही है ना, इसको कंटिन्यू जी करते हुए बाहर के मटेरियल को, चूंकि मतलब जो एक्स्ट्रा बाहर से जो चीजें, गर्मी या फिर जो बहुत ज्यादा, सॉरी, बहुत ज्यादा ठंड जो आ रही है, उसको वो क्या करता है, उसका जी रेफलेक्स में एक सेंसेशन देता है, ठीक है, दैट इज जी इनिशिएट और इनर्वेट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द एसिटाइल कोलिन। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये उसको मतलब एक तरह से इनिशिएट करता है एक पिन पॉइंट पे, जो ऑलमोस्ट स्किन के सारे पार्ट्स में होता है, जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। तो उससे वो क्या होता है, मतलब वो जब न्यूरोट्रांसमीटर जब निकलती है तो एज अ शिवरिंग के टाइप से, मतलब वो पिन पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वहां थोड़ा शिवरिंग के गर्मी टाइप। होता है, तो वो जो गर्मी है वो उस ठंड को, बाहर वाले ठंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। जी तो दैट इज द, जी जी इसलिए ये शिवरिंग जो है बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो एक चीज ये हो गई। इसके अलावा अगर स्किन का रोल देखोगे तो प्रोटेक्शन जैसा भी था। प्रोटेक्शन मतलब जी मान लो वैसे अब कोई एनिमल बाहर जा रहा है, पानी में गया, पानी जी कैसा है, गंदा है, एयर क्या है, कैसा है ना,
तो उसको अपने जी शरीर को बचाने के लिए, मतलब सबसे ऊपर तो स्किन ही है जिसपे वो अटैक कर रहा है सबसे पहला। जी तो उसको बचाने के जी लिए क्या करता है वहां से, एक तो बहुत सारे ऑयल, सेबेसियस ग्लैंड है ना, जी सेबेसियस ग्लैंड ऑलमोस्ट सब जगह है जो ऑयल छोड़ता है ना, ऑयल लिबरेट करता है। छोड़ता है जी। करता है उसमें एक अलग तरह की एक बंध होती है, दैट इज ड्यू टू द एंजाइम और यू कैन से द फेरोमोन। तो उस फेरोमोन के तहत क्या करता है, उस वायरस को, बैक्टीरिया को, वट एवर इट इज, द प्रेजेंस इन आउटरमोस्ट इन्वायरमेंट, उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरा जैसे डस्ट पार्टिकल है, जी तो वो भी उसमें ही चिपक के रह जाता है, ठीक है, उस ऑयल में ही चिपक के रह जाता है सीबेसियस ग्लैंड से जो लिबरेट होती है फ्लूइड। तो वो डायरेक्ट बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है, क्योंकि पोर्स तो है ही पूरे स्किन में, लेकिन वो एंटर नहीं करने देती। जी तो सोचो कि कितना बढ़िया प्रोटेक्टिव मेजर भी वो अप्लाई करता है। तो अप्लाई कर। हाँ, स्किन कहने को तो मतलब बस लगती है कि कुछ नहीं, बाहर की चीज है, लेकिन नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। अब एक तरह से देख सकते हो, एक कंडीशन है, जब हम लोग मतलब उसके कुछ ट्रीटमेंट्स और अलग अलग लेकुनास के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो इसमें एक खास चीज देखोगे कि कभी कभी बर्न होती जी है। बर्न होती है तो बोलते हैं ना, जितनी सुपरफिशियल बर्न होती है उतनी वो खराब होती है, और अगर बर्न थोड़ा ज्यादा डीप जी तो वो कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ठीक है। उसका रीजन क्या है कि सुपरफिशियली तुम्हारे वेन्स जो है वो सुपरफिशियली होते हैं, दूसरी नर्व्स जो है वो जी superficially होती है। तो अगर वहां बर्न होती है तो वो डायरेक्ट अटैक करती है उस पर, ठीक है, तो वो तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है, जी हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस पर डायरेक्ट अटैक होती है। तो ऊपर वाली जो चीज है और दूसरी स्किन हट गई, तो वहां से फिर इन्फेक्शन का, सेकेंडरी इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इस कारण से बढ़ जाता कहा जाता है कि ऊपर सुपरफिशियली जो बर्न होती है ना, वो बहुत ही खराब होती है। क्योंकि इंटरनल बर्न के लिए तो आप चलो कुछ उपाय कर सकते हैं, हीलिंग करने के लिए उसको आप है। जी गॉज डाल के फिर मतलब बैंडेज वैंडेज करके आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सुपरफिशियली में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसको हीलिंग करने के लिए भी ऑप्शंस पूरे चाहिए, तो उसको आप उस समय कवर नहीं जी कर सकते, तो ये एक चीज है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ स्किन for which an animal required to maintain their normal health status, or you can say the normal metabolism, or for their survivability. मेटाबॉलिज्म। तो जी सर्वाइवलिटी के लिए भी बहुत जरूरी है। तो कहने का सेंस है बहुत छोटी सी चीज, पतली सी ऊपर में है, लेकिन देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारी चीजें। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट समझ सकते जी हो, जो पॉइंट्स थे हमने फिर से कंक्लूड कर दिया। एक जो रहेगी चीज वो हाइपोडर्मिस। जी Hypodermis हमेशा याद रखना, because जी the hair follicle, the root of the hair follicles are developed from or rooted हाइपोडर्मिस। at hypodermis। ये क्वेश्चन हमेशा आती है ऑब्जेक्टिव्स में, है ना, इसको ध्यान रखना। तो ये एक जी बेसिक चीज हो गई। हाँ, अब अगर जैसे मान लो कि इफ एनी टाइप ऑफ स्किन एबरेशन और समथिंग unhappening is being with the skin, then there should be some treatment। तो स्पेसिफिक हम लोग जैसे देख सकते हो, स्क्रीन पे तुम्हारी दिख रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, एंटीवायरल जी ड्रग्स, फंगल एंटी जी फंगल, एंटीहिस्टामिन्स। तो ये जो तुम्हारे हैं अलग अलग फैक्टर्स के लिए, मतलब किस तरह का फैक्टर जी आपके स्किन पे काम कर रहा है, और उससे बचने के लिए, स्किन प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। तो बेसिकली जो तुम्हारी कर सकते स्टेरॉइड्स, दैट इज द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये देख सकते हो, हैं। जी इसके बारे में बड़ा क्लियर दिया है कि बहुत ही कम यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, जी दीज मेडिसिन रिड्यूस इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यूनी सिस्टम। जी सर। डर्माटाइटिस तो ये कंट्रोल करेगा, लेकिन ये इम्यून जी सिस्टम को रिड्यूस करता है, इसलिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को रिड्यूस करेगा। बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। मतलब बहुत फास्ट कंडीशन होती है तभी यूज करते हैं, अदरवाइज वी डोंट यूज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नहीं कर। लाइक जी एंटीबायोटिक्स, तो देख सकते हो मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, जो जी सेल्यूलाइटिस से रिगार्डिंग है, और अदर स्किन इन्फेक्शन। मतलब कि जो जी बेसिक हमारे स्किन में इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए दीज एंटीबायोटिक्स आर द बेस्ट रेमेडी टू कम ओवरकम फ्रॉम एनी डिजीज कंडीशन।
एंटीवायरल ड्रग्स देख सकते हो, अगर किसी तरह के वायरस की अगर शिकायत आती है वायरस की। तो उसके लिए ठीक है। एंटीवायरल फिर हम लोग यूज करते हैं। एंटीहिस्टामिन मतलब अगर ठीक है। किसी तरह की एलर्जी, किसी तरह का इचिंग, या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो, या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, या किसी भी तरह की इस टाइप की चीजें हो जो किसी तरह का हिस्टामिन प्रोड्यूस कर रहा है स्किन पे, तो उसके लिए ठीक फिर है। हम एंटीहिस्टामिन यूज करते हैं। देख सकते हो इम्यून ठीक है। मॉड्यूलेटर्स, तो बहुत सारे ड्रग्स जो हैं ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को मतलब मॉडिफाई कर देते हैं सर्टेन कंडीशंस मॉडिफाई करते हैं। में। तो ये ठीक है जी। मॉडिफाई तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, डर्मेटाइटिस का कंडीशन में तो ठीक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा बिल्कुल पहला आपने देखा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के केस में, ये कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट आती है इसकी। इफेक्ट करते हैं जी। तो वैसे ही इम्यून मॉड्यूलेटर्स है ये भी, डर्मेटाइटिस में तो ठीक है, ये भी डालेंगे। कहीं ना कहीं इम्यून जी। मॉड्यूलेट तो कर रही है, लेकिन अदर जो इम्यून सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी इसमें परेशानी है। ठीक है। स्किन मॉइस्चराइजर्स देख सकते हो, अगर किसी तरह की स्किन ड्राई है या फिर इरिटेशन, ईचिंग, मतलब किसी भी तरह का अगर उसमें कहीं प्राइमरी इन्फेक्शन है या इन्फेस्टेशन है, देन ठीक वी है। कैन यूज दिस moisturizers. So ठीक है। this is about all the thing which requires for the basic knowledge for the skin. हाँ, तो ये बिल्कुल बेसिक ओके। नॉलेज के लिए जो जी। था वो हमने आज किया था क्लास, ठीक है। तो जी। जी।